پاکستان بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کو تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو۔ کہا نیوٹرل مقام پر بھارت کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ خطہ دشمنی سے نہیں تجارتی روابط اور پارٹنرشپ سے چل سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ کشمیر اہم تنازع ہے۔ بھارت نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے آج تک ثبوت نہیں دیے۔ پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کوئی تنازع نہیں چاہتا۔ چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ سے تعلقات خراب کرنا نہیں۔ مستحکم افغانستان۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں۔ بانی کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے، سرحدیں کھولیں اور 30-40 ہزار طالبان اندر آ گئے، پھر سے زندہ ہو گئے۔ ہم یہ دوبارہ بھی کر لیں گے، مگر بانی کا یہ فیصلہ بہت افسوسناک تھا۔ افغانستان کی سرحدیں نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ مزید بولے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دہائیوں سے امریکہ میں امریکی قانون کے تحت قید ہیں۔ پاکستان امریکہ کی منڈیوں تک مؤثر رسائی چاہتا ہے۔ پاکستان امریکہ سے ایڈ نہیں تجارت چاہتا ہے۔ امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے خطاب۔ کہا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات انتہائی مفید رہی۔ باہمی شراکت داری پر زور دیا۔ AIIT انسداد دہشت گردی میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن ہمارے اور دنیا کے لیے اہم ہے۔ پاکستان امن پسند ایٹمی ملک ہے۔ تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں امریکی کردار کو سراہتے ہیں۔ واشنگٹن میں 2 بڑوں کی بیٹھک۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم کا عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین۔ کہا پاک بھارت کشیدگی میں صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین ہے۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ پاکستان امریکی کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش منزل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ بولے عالمی و علاقائی امن کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبہ جات میں تعاون پر تفصیلی بات چیت۔ زراعت، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبہ جات میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ ملاقات میں میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا امریکی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ ملاقات بہترین رہی۔ مارکو روبیو کے ساتھ افغانستان، ایران سمیت غزہ کی صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا مارکو روبیو سے ملاقات میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، IT، AI اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز رہی۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سیہونی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کے غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کی۔ کہا سیہونی حکومت فلسطینی شناخت کو مٹانے کے لیے طویل المدتی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ میں انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ فریقین نے سیہونی جارحیت کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دورہ چین میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ پاکستان اور چین کا علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سمیت سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے چینی نائب صدر ہان ینگ اور وزیر خارجہ وانگ یی سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ CPEC کے تحت ابھرتے علاقائی اور عالمی منظرنامے پر گفتگو۔ دونوں ممالک کی قیادت کا 2 طرفہ تعلقات کی گہرائی پر اطمینان کا اظہار۔ شراکت داری بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ چینی حکام کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک افواج کے کردار کی تعریف۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ گارڈ آف آنر پیش۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل چین سے ملاقات۔ سلامتی اور دفاعی تعاون پر جامع تبادلہ خیال۔ کہا پاک چین دفاعی تعاون کو توسیع دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین سے بھی ملے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کی کوشش مسترد۔
सेनेट में इसराइली इक़दामात की खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर पलवशा खान ने पेश की। मतन के मुताबिक फ़लस्तीन के लोगों के साथ ये ऐवान मुकम्मल तौर पर हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, यह अफसोसनाक अमल बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के हुकूक और आलमी असूलों को मुसलसल नज़रअंदाज करने की अक्कासी है। काबिज़ इसराइल की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की हमास को धमकी। कहा, हमास की क़यादत गजा में जंग बंदी के लिए मुआहिदा नहीं करना चाहती बल्कि मरना चाहती है। हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। अमेरिकी वफ्द को मुशावरत के लिए दोहा से वापस बुलाया। फ्रांसीसी सदर के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के बयान पर लफ्जी वार। बोले, मैक्रोन के बयान की कोई अहमियत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बरतानवी पार्लियामेंट के 125 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म के स्टारमर को खत लिखा। बरतानिया 1980 से दो रियासती हल की हिमायत करता आया है। मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीन को तस्लीम करना मौक़िफ़ को हकीकत का रूप देगा। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र की इसराइली बिल की मज़म्मत, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक का फ्रांसीसी सदर के बयान का खैर मकदम। सऊदी अरब ने फ्रांसीसी फैसले को मुस्बत करार देते हुए दीगर ममालिक से भी मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए इसी तरह के इक़दामात उठाएं। हस्पानवी वज़ीर आज़म का कहना है, दो रियासती हल ही क़याम अमन का वाहिद हल है और उसमें फ्रांस का शामिल होना खुशाइंद है। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि मज़लूम फ़लस्तीनी आवाम के लिए जायज़ हक़ खुद इरादियत की हिमायत दुरुस्त फैसला है। पाकिस्तान सैलाबी रेलों की ज़द में आ गया। चिलास के बाद गांछे में सैलाबी रेलें ने तबाही मचा दी। नाला कंदूस में तुग़यानी से 50 से ज़ायद घर, दर्जनों दुकानें, मसाजिद और सड़कें तबाह। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 9 अफराद जम बहक, 12 लापता। दयामिर में सैलाबी रेला गुजरने के बाद तबाही के मनाज़िर। मट्टी में धंसी गाड़ियों में सियाहों का सामान मौजूद। सैलाब चट्टानों को सड़कों पर धकेल गया। पाक फौज और GB स्काउट्स का रेस्क्यू ऑपरेशन। 300 से ज़ायद सियाह और मुसाफिर महफूज मुकाम पर मुंतकिल। एबटाबाद के सियाहती मुकाम ठंडियानी में लैंड स्लाइडिंग से पुल टूट गया। ठंडियानी का कई देहात से राबता मुनक़ता। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। सियाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। शिगर के नवाही इलाका कायमाबाद तसर में सैलाबी रेले के बायस फसल तबाह। खेत खलियान भी पानी की नजर हुए। झील सैफुल मलूक के करीब क्लाउड ब्रस्ट। कंडोरा नाला में तुग़यानी। झील रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के अहकामात पर इंतजामिया की कार्रवाई। फंसे 500 सियाहों को रेस्क्यू कर लिया। 117 से ज़ायद गाड़ियां फंस गई थीं। गिलियात में मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। धक्कन ततरीला के मकाम पर मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आया। पंजाब में दरिया बिफर गए, कई देहात ज़ेर-ए-आब। झंग में दरियाए चिनाब से मुल्हिका नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। 18,000 के मुकाम पर भी दरियाए चिनाब का पानी बाहर निकलने लगा। दरियाए सतलुज की सतह बुलंद। हैड गंडा सिंह के मकाम पर सतह 14 फीट बुलंद। कबीरवाला के मकाम पर दरियाए रावी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह। किसानों की जमा पूंजी पानी में बह गई। मुतासर अफराद की बड़ी तादाद नकल मकानी करने पर मजबूर है। रुझान के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद। नशेबी इलाकों में पानी आ गया। बारिशों के एक और सिलसिले का अलर्ट। मुल्क भर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 28 जुलाई से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात समेत पंजाब के बेशतर जिला में बादल जमकर बरसेंगे। KP के बालाई इलाकों समेत बेशतर इजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इजला में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। जदीद मॉडल नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए निजी सरमायाकारी को राग़िब करेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, निज़ाम के तहत नौजवानों को असली तकाज़ों से हम आहंग हुनर सिखाए जाएंगे। नौजवानों की तरबियत के बाद रोज़गार यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। बैरून मुल्क रोज़गार के हुसूल के लिए हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाए। सेनेट की कायमा कमेटियों की कार्रवाइयों पर हुक्म इम्तना का इंकशाफ। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने तफसीलात ऐवान वाला को आगाह कर दिया। बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक दूसरी हाई कोर्ट से 2 नोटिस मौसूल हुए। ये नोटिस सेनेट कमेटियों की कार्रवाई रोकने के हवाले से हैं। अदालतों ने कमेटियों की कार्रवाई रोकने के अहकाम दिए हैं। अदालतों ने कहा है कि फला मामले को कमेटी में सुन ही नहीं सकते। ये मामला इंतहाई संजीदा और पार्लियामेंट से मजाक है। अटॉर्नी जनरल को तलब करके इस पर वजाहत तलब की जाए। पैनल ऑफ चेयर शहादत आवान ने अटॉर्नी जनरल को तलब करने की रूलिंग दे दी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, आपने रूलिंग दे दी, अब इस पर मजीद बात नहीं हो सकती। महंगाई की आग मजीद भड़क उठी। एक हफ्ते में शरह में 4.7% का बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गैस फी MMBTU 590 रुपये महंगी। टमाटर की फी किलो कीमत में 1900 रुपये तक इजाफा। बिजली के यूनिट की कीमत 1 रुपया बढ़ गई। अंडे फी दर्जन 11 रुपये महंगे। दही, ताज़ा दूध, चावल, दाल मसूर, बीफ भी महंगा। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। चीनी माफिया को काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। पंजाब में महंगाई कंट्रोल करने वाली पीरा फोर्स नाकाम। कराची में प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी चीनी की कीमतों पर काबू न पा सकी। शहर में चीनी 180 से 185 रुपए किलो। पंजाब में माने चाहे रेट, चीनी 200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों ने मिठास छीनने जाने पर हुकूमत कड़वी सुना दी। 100 रुपये की आधा किलो दी है 100 रुपए की। हुकूमत कुछ कहती है और दुकान वाले कुछ कहते हैं, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। चीनी तो हर घर में इस्तेमाल होती है। रेट पता किया तो 250 रुपये से कम किलो चीनी नहीं है। महंगी भी है और कहाँ मिल रही है सस्ती, कोई चीज़ ही नहीं सस्ती मिल रही। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 1 जख्मी। पुलिस मौके पर पहुंची तो 2 अफराद जख्मी हालत में पाए गए, जिनमें से एक मौके पर ही दम तोड़ गया। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। थाईलैंड ने F-16 तैयारे फ़ज़ा में भेज दिए। कंबोडिया के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन हमले। कंबोडिया की जानिब से भी थाईलैंड पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी। थाई हुकूमत ने 18 अजला में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया।